Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will start a new chapter of biology, class 12th, chapter 10, that is microbes in human welfare. Now as the name suggests, microbes word, that means ki we will be talking about microorganism which are helpful for humans. So in the whole chapter you will find a list of microbes which are useful for humans. Now as you have seen microscope, we have studied about microscopic plants and animals also. Now apart from that, microbes are also the major component of biological system on this earth, and microbes, they are present everywhere, whether it is soil, water, air. microbes जो हैं वो हर जगह present होते हैं, and they can also survive the extreme condition. अगर हम बात करें high temperature, आपने thermal bacteria के बारे में पढ़ा था, hot spring. Okay, so here the temperature may be high as 100 degrees centigrade or more than that. So microbes are present there also, they are present deep in the soil also. Okay, and they are present or in nutshell we can say कि microbes are present everywhere, हर जगह microbes present है. Okay, now first we will start with the microbes which are used in household products. Now these microbes are also used in household products, okay, just to increase the texture, the taste of that fruit. Okay, so one by one we'll be discussing about them. Now microbes or microorganism are those organisms which are not visible to the naked eyes because they have a size of 0.1 nanometer or less. As the name suggests, micro means होता है very small, that can't be seen from the naked eyes, and it can be only seen through microscope. इसीलिए word जो है microbes दिया गया है. Microbes belong to diverse group of organism. For example, bacteria, fungi, protozoa, microscopic plants, viruses, viroids and prions are also included among microbes. So microbes, various types of microbes exist. Bacteria से लेके फंजाई, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, ओके, ये सब माइक्रोब्स की ही कैटेगरी में आते हैं. इवन जो वायरसेस होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं, प्रियॉन्स, दे आल्सो कम इन दैट कैटेगरी. नाउ हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की बात करें वेयर वी यूज़ माइक्रोब्स. कर्ड में योगर्ट, बटर मिल्क, सोर क्रीम, चीज़, ब्रेड, डोसा, उपमा, इडली, अदर फूड्स, सिंगल सेल प्रोडक्ट, टॉडी. ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि घर में यूज़ होते हैं एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्ड के बारे में. नाउ एज यू ऑल नो, कर्ड जो है that curd is prepared by a microorganism जो कि कर्ड में मिलता है, and that microorganism is known as lactobacillus. Okay, और and other commonly they are also they are known as lactic acid bacteria. इसको LAB lab भी बोलते हैं हम. Okay, and these lactic acid bacteria, they grow in milk and they converted into growth. Okay, now Indian curd is prepared by inoculating skimmed or cream milk with lactobacillus acidophilus at a temperature of about 40 degrees centigrade or less. So the curd can be prepared by inoculating the small amount, introducing the small amount of this bacteria. ठीक है, बहुत छोटा सा अमाउंट जो है कर्ड का वो ऐड किया जाता है फ्रेश मिल्क में. ओके, एज इनोक्यूलम बोलते हैं जो छोटा सा अमाउंट ऐड करते हैं, दैट अमाउंट इज़ नोन एज इनोक्यूलम और स्टार्टर. ठीक है, और ये जो छोटा सा अमाउंट होता है दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ बहुत मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज बैक्टीरिया एट सुटेबल टेम्परेचर दे मल्टीप्लाई एंड दे कन्वर्ट द मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क को ये
कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क एज इट कंटेन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड विटामिन्स इंक्लूडिंग B12. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कर्ड जो है कौन सा विटामिन रिच कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है. विटामिन B12. That is very important. Lab present in curd also check growth of disease causing microbes in stomach and other parts of digestive tract. So this curd is also helpful for our digestive system, okay, and it plays a beneficially role in checking diseases, ठीक है, causing by other microbes. So this is very useful for human and it is very nutritious more than milk और कर्ड में अगर कहा जाए तो कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस. नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ चीज़. नाउ चीज़ जो है लार्ज होल्ड स्विस चीज़ इज़ राइपेंड बाय हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड producing bacterium called Propionibacterium shermani. Okay, सो दिस इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया. नाउ जो स्विस चीज़ होता है उसमें बहुत होल्स बने होते हैं, बहुत फ्लफ़ी होता है. ओके, एंड दीज होल्स आर प्रोड्यूस्ड एज यू ऑल नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, दीज होल्स आर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली विच हैज़ escaped during heating. So these are produced by a large amount of carbon dioxide by the bacterium. Bacterium का क्या name है? Propionibacterium shermani. This is the name. This is very important. Okay. Now the Roquefort cheese are ripened by growing specific fungi on them, which gives them a particular flavor. Now Roquefort cheese जो है, it uses Penicillium roqueforti. ठीक है, ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी एक तरह का फंजाई है जो कि यूज़ किया जाता है ग्रो करने के लिए. वाइल कैमेनबर्ट चीज़ एम्प्लॉयज़ पेनिसिलियम कैमेनबर्टी फॉर राइपनिंग. ठीक है, ये दो तरह की चीज़ हैं जिनके आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म याद रखने हैं जो हेल्प करते हैं इसको प्रिपेयर करने में. नाउ ये जो हमने पढ़ा, नाउ इसमें अगर हम ये देखें तो कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि इट रिजल्ट्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये किस प्रोसेस से बनती है, कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे अकर हो रहा है, दैट इज़ फर्मेंटेशन. आपको पता है फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ ब्रेड की बात करें, सेलेक्टेड स्ट्रेन्स ऑफ बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी आर ग्रोन ऑन मोलासिस. सो जो डो होता है, ओके, विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जो आटा होता है जो कि ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होता है, दैट आटा दैट इज़ फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट. इसको इस फंजाई को बेकर्स ईस्ट कहा जाता है एंड द scientific name is Saccharomyces cerevisiae. Okay, and these are grown on the molasses. Now डोसा, उपमा, इडली अगर इसकी बात करें तो राइस एंड उड़द, इसमें इनका दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है और फर्मेंटेशन कराया जाता है फॉर 3 to 12 आवर्स विद एयरबॉर्न ल्यूकोनोस्टिक एंड स्टेप्टोकोकस स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया. नाउ इसमें जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ यूज़ होती हैं आपको बस नाम याद रखना है. ओके, दैट इज़ योर एयरबॉर्न स्पीशीज़ हैं ये, that is Leuconostoc and Streptococcus species of bacteria. Carbon dioxide produced during fermentation causes puffing up of the dough. इसी वजह से जो बैटर होता है, क्योंकि उपमा, डोसा या इडली के लिए जो बैटर होता है वो बहुत पफ्ड होना चाहिए, फ्लफ़ी होना चाहिए, तभी जो है जब आप उसको स्टीम करोगे तो वो फ्लफ़ी बनेगा. तो फर्मेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है. नाउ अनदर लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ टोडी. नाउ टोडी जो है इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है, सदर्न इंडिया में ये ड्रिंक की तरह यूज़ होता है एंड इट इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम. जो पाम ट्री होता है एज यू कैन सी इन द फिगर, उसके सैप जो उसमें निकलता है उसको फर्मेंट किया जाता है एंड देन इट इज़ उसका इंटेक किया जाता है. ओके, सो और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं और फूड हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं बाय फर्मेंटेशन और बाय द माइक्रोब्स, जिसमें से टोडी एक
ट्रेडिशनल ड्रिंक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है टॉडी से या फिर ये कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ओके, so this is all about the microbes in household products, how microbes are important in household products. Now next lecture में हम पढ़ेंगे microbes in industrial products. Thank you everybody.